Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta classes once again. And here is some important information regarding CBSE for the class 3rd to 8th students and class 9 to 12th student. And the information is regarding curriculum of new academic session. As you know that CBSE every year released curriculum for individual classes, and there are some changes in new academic session 2026-27 for class 9 to 12th curriculum. So now we will discuss about in this video. So let's go firstly to the website of CBSE. We can search it. Here it is the CBSE website. You can search CBSE. Now you click on the top CBSE and we will see that there are some subtopics like main website, Pariksha Sangam, result, Saras and academic websites, and also Prashikshan Triveni. But for the students only two websites are important for you, main website and academic website. ठीक है, and other websites are helpful for teachers and some other works. So let's go to the academic website. Let's search firstly main website and we will see that which information released by CBSE. Internet processing is very slow, that's why it can be happened. You can see that here is the first on the top, released of CBSE curriculum for the academic session 2026-27 for the class 9 to 12 on the 1st April, and also here is not given the curriculum of class 3rd to 8th. Now move on the second website like academic website. Click on the academic website and we will see that here it is CBSE curriculum framework for conceptual thinking and artificial intelligence for class 3rd to 8th for new academic session 26-27. तो ये क्लास 3rd to 8th के बच्चों के लिए इस बार CBSE ने एक करिकुलम लॉन्च किया है जिसमें एक कंसेप्चुअल थिंकिंग और आर्टिफिशियल बेस्ड करिकुलम आपका क्लास 3rd to 8th पर होगा। तो इसका करिकुलम अभी 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं क्लिक करके। अगर कोई बच्चा आपका घर में पढ़ रहा हो बच्चों, ठीक है, तो यू कैन डाउनलोड द करिकुलम एंड यू कैन रीड अबाउट द सब टॉपिक्स related to artificial intelligence and conceptual thinking based curriculum. ठीक है, and other hand we will discuss about the curriculum of class 9 to 12. So here the CBSE has released CBSE curriculum for the academic session 26-27 for the class 9 to 12. तो CBSE ने ये दो क्लास 9 to 12 और क्लास 3rd to 8th के लिए अपना करिकुलम लॉन्च कर दिया है। अब नाउ मूव ऑन the curriculum option. You can see that in the green corner. Click the curriculum and you can see that curriculum 26-27. Now click on that and you can find here are the for class 9th curriculum part 1, class 10th curriculum part 1 and class 11th and 12th curriculum. ठीक है, अब इन तीनों क्लासेस के अगर आपको करिकुलम को डाउनलोड करना है तो ईज़िली आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ सेल फोन और मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप एट योर होम, देन यू कैन ईज़िली डाउनलोड दैट। तो
डाउनलोड कैसे करना है आपको, आइए हम आपके मान लीजिए क्लास 9th का ही आपको दिखाते हैं। क्लास 9th पे आप क्लिक करिएगा, क्लिक ऑन द क्लास 9th and go to the main subject. You can see that there are some main subject: mathematics advanced, science. This is the curriculum for class 9th. Now click on the mathematics and you will see that the curriculum of class 9th mathematics subjects are given. Here are some points you can read about that. If you not understand, then you please comment in the section. I will help you. I only make this video for the purpose of curriculum of class 9 to 12 especially. So all these students who come in the class 9 to 12 sections, you can download your curriculum itself and read about carefully the topics and subtopics of each subject and prepare yourself for the board exam. Firstly, number system, algebra, coordinate geometry, mensuration, static probability, and here are the subtopics of number system. Firstly, number system, in the number system section, key concept, किस किस पॉइंट से आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 9th में नंबर सिस्टम में, ये सब चीज़ें आपको इसमें गिवन है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। इसी प्रकार अगर अलजेब्रा में देखें तो अलजेब्रा में कौन कौन चैप्टर्स लिए गए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स को रखा गया है। इसमें टीचर्स को पढ़ाने के लिए 66 पीरियड दिए गए हैं, जिसमें पॉलिनोमियल्स है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस है। क्लास 9th को इसने इस बार अच्छे से चेंज कर दिया है पूरे टॉपिक्स को। इस बार क्लास 9th में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि लग रहा है। ठीक है, इस बार क्लास 9th का जो सब्जेक्ट पैटर्न है पूरी तरीके से मैथमेटिक्स को चेंज कर दिया है बच्चों। तो जो 9th में जा रहे हैं बच्चे वो ध्यान दें कि इस बार आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स 9th में ही देखने को मिलेंगे। इसमें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस डाल दिया गया है 9th में ही। ठीक है, अलजेब्रा ये है, ये पॉलिनोमियल्स भी हैं। फिर इसी में है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी इसमें डाल दिया गया है, फैक्टराइजेशन है, मोर आइडेंटिटीज़ एंड दियर एप्लीकेशंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। जब नई बुक्स आपको मिलेगी तो आप लोग देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग इस करिकुलम को अपने क्लास वाइज इसको डाउनलोड कर लें और इसको अच्छे से पढ़ लें, देख लें क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि 9th का इस बार 9th और 11th का शायद पैटर्न बहुत अच्छे से बदला गया है, तो ये अच्छी चीज़ है। CBSE के द्वारा इनिशिएटिव आइडियाज़ लाए गए हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और आप काफ़ी कुछ नया सीखेंगे इन दोनों क्लासेस में। जो बच्चे 9th में आ रहे हैं या 11th में आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रखा गया है, पढ़ लीजिएगा। इसमें 2D के बारे में स्पेशली बात की गई है इसमें, और इसके लिए 6 पीरियड दिए गए हैं और ज्योमेट्री पोर्शन है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें ज्योमेट्री पोर्शन में यूक्लिड ज्योमेट्री है, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शन स्क्वायर, गिवन साइड्स डिस्क्राइब्ड, बोधायन, सबस्ट्रस, डिस्कवरिंग यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियम्स ऑफ मेजरमेंट एंड रूल्स फॉर ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत चीज़ें इसमें कुछ नई आई हैं जो आपको देखने लायक हैं, इसमें पढ़िएगा। आपके टीचर जब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लास में, तो उनसे इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस भी किया करेंगे आपसे। तो ये आपके क्लास 9th का करिकुलम है। ऐसे ही आप क्लास, अगर आप जाएं तो अदर सब्जेक्ट की क्लास 9th के आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम मूव करेंगे। अगर क्लास इसी पर क्लास 10th का देख लें, 10th का भी है, क्लास 12th का और 11th का भी है। 11th के लिए हम देख लेते हैं। क्लास 11th के मेन सब्जेक्ट में चलते हैं, एकेडमिक इलेक्टिव्स में हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा सारे सब्जेक्ट जो आप ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट चलते हैं उसके करिकुलम दी गई है। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन सब के हैं, फिजिकल एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मैथमेटिक्स का देखेंगे करिकुलम। क्लास 11th और 12th दोनों साथ में हैं।
ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड 041 होगा वो देख लेगा। इस बार 11th में देखिए ये 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है 11th के पूरे बुक को सेट्स में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, सब वही है। ठीक है, कोई ख़ास इसमें चेंज नहीं है। रिलेशन फंक्शन में भी ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोडोमेन, डोमेन, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्सपोनेंशियल, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, सब कुछ वही है प्रीवियस की तरह ही। टेग्नोमेट्री फंक्शंस ये भी वही हैं, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया था। हाँ, इस बार देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्होंने लास्ट टाइम क्या हुआ था बच्चों, क्लास 11th में आर्गन प्लेन को हटा दिया गया था। उसके बारे में केवल बहुत छोटा सा नॉलेज दिया गया था, जिसके बारे में केवल थोड़ा बहुत जानकारी थी। लेकिन इस बार आर्गन प्लेन के बारे में इन्होंने बताया है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लीनियर इनइक्वलिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं है, अलजेब्रिकली ही है। इस बार भी अलजेब्रिकली ही सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट 2 साल पहले की अगर बात हम करें तो उसमें कुछ चेंजेस, पहले के बुक्स जो चलती थी 2-3 साल पहले, उसमें काफ़ी ज़्यादा सब टॉपिक्स होते थे। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से सेम टॉपिक छोटा सा कर दिया गया है, कंसेप्ट लीनियर इक्वलिटीज़ का। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस वही सिंपल इक्वेशंस एप्लीकेशंस पे ही हैं। बायनॉमियल थ्योरम्स था ही, सीक्वेंस सीरीज भी हैं, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में कोई सब टॉपिक इंटरचेंज हुआ है या कुछ नया आया है? नहीं, वही है। कोनिक सेक्शन ठीक है, उसमें भी ये सब चीज़ें थी प्रीवियस की तरह ही है। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं क्लास 11th में। 9th में बहुत चेंजेस किए गए हैं, क्लास 11th में तो चेंजेस हल्के फुल्के हैं, या ना के बराबर ही समझ लें। तो आप लोगों को नई बुक्स जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी, आप लोग अपनी अपनी बुक्स ले लीजिएगा। इसमें क्लास 9 to 12 के ऐसे ही हैं। ठीक है, और जो बच्चे छोटे क्लासेस में हैं 3rd to 8th के लिए, उनके लिए भी CBSE ने इस बार NCF के थ्रू, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत, उसने आर्टिफिशियल और कंसेप्चुअल थिंकिंग बेस्ड करिकुलम को लॉन्च किया है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, और अपने छोटे भाई बहनों को या जो बच्चे छोटे हैं क्लास 3rd to 8th में पढ़ते हैं, उनको भी उस चीज़ के करिकुलम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं क्या क्या पढ़ना है उनको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कुछ करिकुलम में समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकल बेसिस पे क्या है, कौन सी बुक आपको लेनी है, ये सब चीज़ें आपको इसमें लास्ट में आपको देखेंगे। तो इसमें बुक्स भी प्रिस्क्राइब किया रहता है, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए प्रिस्क्राइब बुक दिया गया है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 11th के लिए NCERT पब्लिकेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, 12th का लेंगे तो 2 पार्ट में होगा। और इसने क्या कहा है, NCERT एग्जाम्पलर को प्रेफर किया है 11th में 12th में दोनों के लिए। NCERT एग्जाम्पलर कभी भी CBSE जो है रेफरेंस बुक को प्रेफर नहीं करती है, ये आप लोग अपना अलग से लेते हैं, या टीचर्स आपको अलग से प्रेफर करते हैं कि हाँ आप लोग रेफरेंस बुक ले लें, RD शर्मा या RS अग्रवाल ले लें, जिसको पढ़ने में आसानी रहे, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन जिसकी आप प्रिपेयर कर रहे हो आफ्टर 12th या अपेयरिंग 12th में, कि आपको JEE देना है या कहीं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं कि वहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं इस टॉपिक के, वो बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लगाने के लिए प्रैक्टिस हो जाती है, क्वेश्चन बहुत नए नए मिल जाते हैं, तो इसलिए लोग उसको लेते हैं। हालांकि ये अगर NCERT एग्जाम्पलर भी अगर आप बुक खरीदते हैं तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिल जाते हैं। अब स्टूडेंट्स के और टीचर्स के ऊपर होता है कि वो बच्चों को कितना पढ़ा सकता है और कितनी सारी जानकारियाँ दे सकता है। ठीक है, अब जितना बच्चे पढ़ेंगे उतनी ही उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसलिए आपके लिए बुक की कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके अपनी पढ़ाई को जारी रखना होगा। आजकल की जो जनरेशन है वो पढ़ाई पे ध्यान कम देती है, इसीलिए वो NCERT की बुक नहीं ख़त्म कर पाती है सही से, बाकी बुक्स कहाँ ख़त्म होंगी। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका पूरा करिकुलम था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक इसमें अगर दिखती है आपको तो मुझे प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, ये क्लास 12th का नीचे दिया गया था, और इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कितने कितने दिनों में ख़त्म करना है, कुल कितना CBSE ने दिया है, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप लोग इसको अपना
अच्छे से अपने अपने सब जिस भी क्लास में हैं उसका करिकुलम डाउनलोड कर लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर नए हैं, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।